Hello and welcome. Welcome to the third learning session of chapter number 1 of Algebra, which is linear equation in two variables. In our first learning session, we learned the meaning of various terms, right? What is the meaning of equation? What is the meaning of the word linear equation? What is the meaning of variable? What is the meaning of constants? So on and so forth. Then in the second half of the first learning session, we learned how to solve a special type of linear equation in two variables. What was that special type? Whatever is multiplied to y in the first equation, the same number will be multiplied to x in the second equation. Whatever is multiplied to x in the first equation, the same number will be multiplied to y in the second equation. So that's a special type of linear equations in two variables, and we have a special method to solve such kind of sums, which makes it easier to solve these sums. What was that method? You add both of them, you subtract both of them, and जो दो नई equations मिलेंगे उनको वापस add कर दो, you get the required solution, right? So that was add, subtract, add method, only applicable for certain special type of questions. Next, in our second learning session, we learned how to solve simultaneous equations in two variables using graphical method. You know that whenever you plot the graph of linear equations, you're going to get a line. Alright? So अगर तुमने दो equations को plot कर दिए graph पे, वो दो line जहाँ पे meet करेंगे, the point at which the both lines are going to intersect each other, उसका x coordinate will be your answer for x, उसका y coordinate will be your answer for y. Right? So it was again another method to solve linear equations in two variables. Today we're going to see another method. Okay, it depends, right? Which method is easier, which method is difficult, depends on the question. Sometimes कि इस question को graphical method से solve करना easy होगा, इस question को Cramer's rule से solve करना easy होगा. Depends on that, and it also depends on person to person. Some people like to draw graphs and वहाँ से उनको easily answer मिलता है. Some people like to do calculations. And hence they find Cramer's rule easy. So it's important that we know different types of methods to solve the same kind of question. Okay. So our objective for today is going to be students will be able to solve linear equation in two variables using Cramer's rule. Okay, Cramer's rule हम पढ़ने वाले हैं. Who is Kramer? Kramer कहाँ से आया नाम, right? So Kramer is the name of a mathematician. It's an interesting person to know about. He was a mathematician from Switzerland, and he was born more than 200 years back. तो बहुत पहले की बात है, and he was a genius to be honest. 18 years की एज में उसके पास PhD था और फिर बाद में प्रोफेसर बन गया. So it's an interesting person to read more about Kramer. Okay. So before we actually learn and understand Cramer's rule, we need to understand what is determinants. Okay, determinants, if you all remember, we have studied that in previous grades, right? So we need to know what is determinants. Again, I'm sorry for the background noise which you all can hear. Thuk, 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 thuk. I think there's some construction going on upstairs, but can't really help it. Okay, so we're going to focus on the video. We're going to focus on the learning part and try not to be distracted by the background noise. So let us learn what is a determinant. So determinant को ऐसे लिखते हैं. राइट, ऐसे कुछ तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट को. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हाउ डू यू सॉल्व इट? इस नंबर को ले लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो. ओके, सो व्हाट विल आई गेट? 2 into 3. आई पुट दैट इन ब्रैकेट. नेक्स्ट, इस नंबर को ले लो एंड इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. अगेन व्हाट आई गेट इज 3 into 4. 3 into 4, राइट? एंड इन दोनों नंबर्स को तुम्हें सबट्रैक्ट करना है. दैट्स इट. ऐसे तुम्हें डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है, राइट? सो लेट अस सॉल्व दिस सम. 2 3s are 6 हो जाएगा, माइनस 3 4s are 12. 6 minus 12 is -6. सो इस डिटरमिनेंट का आंसर है -6. क्लियर है? सो इट्स इजी. यहाँ पे हमने सर्कल क्यों नहीं ड्रॉ किया? इट्स इजी, राइट? फर्स्ट नंबर को ले लो और उसके ऑपोजिट जो है नंबर डायगोनली उससे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस साइन. फिर अपने सेकंड नंबर ले लो, उसके ऑपोजिट डायगोनली जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट? रिमेंबर टू डू द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन डू द सब्ट्रैक्शन, BODMAS रूल, राइट? And you will get your final answer after doing some calculation. So that is how you solve a determinant. This is called as a determinant. Okay, please note this down in your notebook. Determinant. Okay, now that we know what a determinant is, इसका और linear equations का क्या संबंध है, right? Here we are talking about linear equation in two variables. इसका determinant का और linear equations का क्या संबंध है? That we'll see now.
So I'll have to take some examples, right? So I'm going to take examples. A1x plus B1y is equal to C1. A2x plus B2y is equal to C2. ओके, तो यहाँ पे सब लेटर्स दिख रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या लिखा है, A1 A2 X Y सारे लेटर्स है. ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मैथमेटिक्स का लर्निंग सेशन चल रहा है, कि इंग्लिश का कोई तो लर्निंग सेशन लग रहा है. कोई नंबर्स दिख ही नहीं रहे. एंड द मोमेंट you take out numbers from mathematics, it becomes more and more difficult. Okay, and if you actually check 11th standard 12th standard, उसके बाद समझो 13 14 जो ग्रेजुएशन करते हैं मैथमेटिक्स में, उनकी नोटबुक खोल के देखोगे उसमें बहुत कम नंबर्स मिलते हैं. ज्यादा करके तुम्हें लेटर्स मिलेंगे और तुम्हें ग्रीक सिंबल्स मिलेंगे, पाई, डेल्टा, गामा, ये सब मिलेगा तुम्हें. ओके, so the more and more advanced mathematics you learn, the more and more letters come in, English letters as well as Greek letters, and less and less numbers can be seen in the notebooks. Okay, so y'all are in grade 10, so no numbers, but let us try to understand this. इसमें वेरिएबल कौन से that we'll first see. इसमें वेरिएबल क्या है? X and Y are the variable. Okay, note that X and Y are variable, and we had seen the meaning of the word variable in our first learning session. Variable क्या होता है? Something that is going to vary, something that is going to change. यानी इसका वैल्यू हमें नहीं पता x and y का, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, व्हाट आर कांस्टेंट्स? वेरिएबल का ऑपोजिट्स. तो यहाँ पे कांस्टेंट्स कौन से? A1 B1 C1 A2 B2 C2. ऑल दीज आर कांस्टेंट्स. कांस्टेंट्स का मतलब क्या होगा? ये नंबर्स होगा. A1 समझो 3 है, B2 समझो 9 है, C1 समझो -3 है. सो दीज आर ऑल गोइंग टू बी नंबर्स. एक्स एंड वाई नंबर्स नहीं होने वाले. एक्स एंड वाई को हमें ढूंढना पड़ेगा सॉल्व करके. A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये नंबर्स होने वाले. दे आर कांस्टेंट्स. ओके, हम बस अभी फॉर्मूला लिखने वाले, इसलिए मैंने उनको लेटर्स लिया है, वरना जब सम्स मिलेंगे तब ये सब नंबर्स होने वाले हैं. इट विल फील अ लिटिल इजी. ओके, सो क्रेमर्स रूल के हिसाब से x इज इक्वल टू dx अपॉन d and y is equal to dy upon d. ओके, सिंपल है राइट? एक छोटे से फॉर्मूला से तुम्हें डायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाएगा. जस्ट इमेजिन राइट, हमने लास्ट लर्निंग सेशन में ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को समझा था. तो दोनों के लिए टेबल्स बनाने पड़ते हैं, टेबल्स को फिल करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ में कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो चेक करना पड़ता है, एंड देन वी राइट द फाइनल आंसर. बट यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला से तुम्हें दोनों x और y का वैल्यू मिल जाएगा. बट फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट इज dx d एंड dy. ये तीन चीज क्या तुम्हें पता चलना चाहिए. हेंस वी लर्न डिटरमिनेंट, d फॉर डिटरमिनेंट. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज d. ओके, d इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी अ डिटरमिनेंट. आई टोल्ड यू राइट, ये डिटरमिनेंट होने वाला है. सो इसके लिए क्या करना है? इसके ऊपर अपना हाथ रख दो. ओके, इसको इग्नोर कर दो. इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो कुछ भी है इसको इग्नोर कर दो. अभी क्या बचे? कौन से कांस्टेंट्स बचे? A1 A2 B1 B2 राइट. तो उसको वैसे के वैसे लिख दो. A1 A2 B1 B2. दैट्स इट. ए को मैंने थोड़ा छोटा लिखा है. A1 A2. ओके, दैट्स इट. ये है तुम्हारा A का वैल्यू, सॉरी ये है तुम्हारा D का वैल्यू. नेक्स्ट dx. लेट अस सी व्हाट इज dx. अगेन अभी dx है राइट, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो x के साथ मल्टीप्लाइड था उसको इग्नोर कर दो. ओके, इसको इग्नोर करना है और b को वैसे के वैसे लिखना है. इसको इग्नोर करो, b को वैसे के वैसे लिखो. सो b1 एंड b2. ओके, बट इसको इग्नोर किया था. यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है, तो लेफ्ट साइड के कॉलम में A1 A2 लिखने के बजाय तुम लोग C1 C2 लिख दो. ओके, C1 C2 as your dx and finally dy. dy के लिए क्या करोगे? ये टर्म्स को इग्नोर करो, y वाले टर्म्स को इग्नोर कर दो. a को वैसे के वैसे लिख दो. a कहां पे था? a लेफ्ट साइड में था राइट. तो इसको यहाँ पे वैसे के वैसे A1 A2. बट अभी यहाँ पे b वाले टर्म्स लिखे नहीं हमने, तो b वाले टर्म्स के जगह पे क्या लिखोगे तुम? C1 C2. Here you will put C1 C2. क्लियर है? दिस इज योर d dx dy. इसको बस कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटरमिनेंट को और वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाएगा. I'm going to explain one more time how to write these
फॉर्मूलाज। ओके, इसको बाय हार्ट मत करो, इसको कैसे लिखना ये याद कर लो। तो एग्जाम में डायरेक्टली तुम यही लॉजिक यूज करके फॉर्मूलाज लिख सकते हो। ओके, डोंट बाय हार्ट देम। बाय हार्ट करोगे तो बहुत इजीली भूल जाओगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम इनको लिखना कैसे है। ओके, ट्राई टू रिमेंबर द फ्लो, ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसीजर। डी इज इक्वल टू इसके लिए राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है उसको इग्नोर कर दो। क्या बचा? a1 a2 b1 b2, ये यहाँ पे लिख दो a1 a2 b1 b2। क्लियर है? नेक्स्ट dx है, x वाले टर्म्स को इग्नोर कर दो, b को वैसे के वैसे लिख दो, x वाले टर्म्स इग्नोर कर दिए, b1 b2 वैसे के वैसे लिखेंगे b1 b2। ओके, नेक्स्ट अभी x के लिए सॉरी dx लिख रहा है, x वाले टर्म्स इग्नोर कर दिए थे, b वाले टर्म्स तो लिख दिए, तो x वाले टर्म्स की जगह पे क्या लिखोगे? c1 c2 जो बच गया, तो c1 c2। सिमिलरली dy के लिए तुम y वाले टर्म्स को इग्नोर कर दो, a को वैसे के वैसे लिख दो, a लेफ्ट साइड में है तो a1 a2 लिख दो पहले, a1 a2। नेक्स्ट अभी y वाले टर्म्स को इग्नोर किया था तो b1 b2 की जगह पे क्या लिखोगे? b1 b2 की जगह पे जो बच गया वो लिख दो। क्या बच गया? c1 c2। तो यहाँ पे c1 c2, you have to calculate these and put substitute in that formula and you will get your answer. Okay, you can note this down in your notebooks and now we can begin with our problem solving. Okay, let us start solving sums given in practice set 1.3. Okay, we're going to follow the same procedure for our practice set questions. I'm going to solve only two of them for you all. Okay, question 2 ka fourth and fifth. Fourth sum I'll solve completely for you all. You'll only have to pay attention when I'm solving it on the board. Fifth one you all will try by yourself. If you all get stuck, if you all don't get the correct answer, you all can again watch the video and see where you have made mistake. Remaining sums you can solve by yourself. Okay, so the question number 2 says solve the given simultaneous equations using Kramer's rule. Okay, तो ये दोनों equations दे दिया fourth question में. So I've written the equations. So let me write the first equation again. 6x minus 4y is equal to minus 12. Do you see something interesting over here? Can 6 be divided by 2? Yes. Can 4 be divided by 2? Yes. Can 12 be divided by 2? Yes. All coefficients and all constants can be divided by 2. तो कर लेते हैं, क्यों? उससे क्या हो जाएगा? नंबर्स छोटे हो जाएंगे और जैसे नंबर्स छोटे हो गए तुम्हारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। अगर तुमने इसी को लेके अगर सॉल्व किया दैट इज ऑल्सो ओके, इट्स नॉट रॉन्ग, बट थोड़े तुम्हारे कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। बट बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे 2 मैं हर जगह पे डिवाइड कर सकता हूँ, आई डिवाइड थ्रू आउट बाई 2 टू मेक माई नंबर स्मॉलर। ओके, सो आई से 6x minus 4y minus 12 divide through it by 2 कर रहा हूँ, right? Let me use a different color. यहाँ पे divide by 2, यहाँ पे divide by 2, यहाँ पे divide by 2. Dividing throughout. Please write full form. Okay, I don't have much space, hence I'm writing it in short form. Dividing throughout by 2. Okay, so things will start getting cancelled. 2 ones are 2 3s are 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are. Okay, so I'll get 3x minus 2y is equal to minus 6. This I'll take as my equation number 1. Again I am saying अगर इसको equation 1 ले लिया और इसको solve कर दिया तो भी ठीक है, it's not wrong, you will get the answer correct. Final answer भी तुम्हें same आना चाहिए जो इस equation से आएगा. Okay, the only thing is your calculations will be a little difficult because numbers थोड़े बड़े हो जाएंगे, that's it. Or else using this as it is also okay, wrong नहीं हो जाएगा. Okay, you should get the same final answer. So first equation हो गया. Second equation 8x minus 3y is equal to minus 2. Okay, तो यहाँ पे चेक करो, this can be divided by 2, this cannot be divided by 2, and इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. जब तक सारे कॉन्स्टेंट्स को तुम किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तुम इसको सिंप्लीफाई नहीं नहीं कर सकते. ओके, सो विल कीप दिस एज इट इज एंड विल से दिस इज इक्वेशन 2. सो ऑलवेज व्हेन यू आर टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल हैव टू चेक कि वो ax plus bx plus c वाले फॉर्म में है क्या. ओके, ax plus bx, ax plus bx नहीं, ax plus by, ax
प्लस by इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में है कि नहीं तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब क्या है, पहले x वाला टर्म होना चाहिए। x वाला टर्म है, यस, दोनों में पहला x वाला टर्म है। नेक्स्ट b वाला टर्म होना चाहिए। ओके, यहाँ पे b वाला टर्म है। अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे तो प्लस साइन दिया, यहाँ पे माइनस साइन आया हमें, दैट्स ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 8x प्लस इंटू -3y इज इक्वल टू -2, ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। एंड प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे भी प्लस साइन ही है। ओके, बिकॉज मैंने इसको इस तरीके से नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है, बट दिस इज ऑल्सो ओके। सो ये प्लस साइन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके, सो सेकेंड टर्म तुम्हारा y वाला टर्म होना चाहिए, दोनों में सेकेंड टर्म y वाला टर्म है। फिर इक्वल टू साइन आना चाहिए, दोनों में इक्वल टू साइन है। फिर c वाला टर्म आना चाहिए विच इज कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, आई टोल्ड यू, राइट। a b c, a1 b1 a2 b2 c1 c2, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स, ये सब नंबर्स होंगे। तो लास्ट में c होना चाहिए, एक अकेला नंबर मिल गया। सो अभी हमारा ax प्लस by प्लस c वाले फॉर्म में है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल यू गेट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 4x, और तुम्हें ऐसे मिला, इज दिस इन ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू c फॉर्म? नो, राइट। तो तुम्हें उसको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक x ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 4x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो -4x हो जाएगा, राइट। सो -4x प्लस 3y यहाँ पे ऑलरेडी था। वापस ये जो कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ अकेला नंबर, ये हमें राइट साइड में चाहिए, राइट, तो इसको राइट साइड में ले लो। सो इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये +2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके -2 हो जाएगा। 4x लेफ्ट साइड में जाके -4x, 3y वैसे के वैसे, +2 राइट साइड में जाके -2। नाउ इज इट इन ax प्लस bx, ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म? यस। पहला x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर इक्वल टू साइन, फिर अकेला नंबर। इसको अब हम इक्वेशन 1 लेंगे। सो इफ इट इज नॉट इन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म, तुम लोग को लेके आना पड़ेगा, और फिर तुम उनको 1 and 2 लोगे। ओके, so let it be there. I'll erase this later if I need to, but remember this, if you first convert your equations in ax plus by is equal to c form। अगर नहीं है तो, पहले से होगा मोस्टली क्वेश्चंस में, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, so you have converted in ax plus by plus c, sorry, ax plus by is equal to c form, so you write that they are in ax plus by plus c equal to 0 form. Okay, now we'll have to compare these equations with, पहले तुम्हें a1 a2 b1 b2 निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमारे इक्वेशंस में तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, तो इनको इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग them with a1x, actually let me write it on the next line, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। ओके, इन दोनों से कंपेयर करेंगे हम। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, ऊपर वाले को किससे कंपेयर कर रहे हैं? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से कंपेयर करेंगे। नीचे वाले को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, कंपेयर करने वाले इन दो इक्वेशन से, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये अगर तुम्हें चाहिए तो पेंसिल से लिख सकते हो, सो दैट कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, अब लिखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज। क्या हो गया? a1 इज 3। नेक्स्ट b1 क्या है? देखो यहाँ पे प्लस साइन है, ओके, जिससे कंपेयर करें उसमें प्लस साइन है, बट हमारे इक्वेशन में माइनस साइन है, तो तुम्हारा b1 क्या हो गया? -2। b1 इज -2। ओके, b1 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट c1 क्या है? -6। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे, b2 अगेन यहाँ पे हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसमें प्लस साइन है, बट हमारे इक्वेशन में जो क्वेश्चन में दिया उसमें माइनस साइन है, यानी b2 क्या हो गया? -3, कि यहाँ पे मैं प्लस अज्यूम करके -3 को ब्रैकेट में डाल सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे b2 इज -3 एंड c2 इज -2।
right? Okay, so we are ready with A1, A2, B1, B2, C1, C2. Now we can start applying Kramer's rule. Okay, yes. So first what we'll do is we'll find d, dx and y. Okay, so let me find d. So let me erase this. मेरे पास काफी कम जगह है आज बोर्ड पे. ओके, व्हाट इज डी? डी का फॉर्मूला लिख दो. डी इज A1, A2, B1, B2. Substitute. What is A1? 3, 8 minus 2 minus 3. 3, 8 minus 2 minus 3. Right? 3, 8 minus 2 minus 3. Okay, now you start calculating. 3 into minus 3. What is 3 into minus 3? Let me write that down. 3 into minus 3. इसको एक बड़ा ब्रैकेट डाल दो. फिर माइनस साइन, वापस एक बड़ा ब्रैकेट. माइनस 2 इंटू 8. तो माइनस 2 इंटू 8. ओके, ट्राई टू बी सिस्टमैटिक अबाउट योर कैलकुलेशंस ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो. ओके, now you solve the big brackets first. 3 into minus 3 is minus 9. Minus 2 into 8. Minus 2 into 8 is minus 16. तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो माइनस 9 प्लस 16. माइनस 9 प्लस 16 इज हाउ मच? 7 प्लस 7, राइट? सो डी आ गया हमें प्लस 7. Similarly, we'll try to find dx and dy. Okay, give me a minute. Okay, let's start solving dx. dx के लिए क्या करना है? a1 a2 नहीं लिखना है. a1 a2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा. एंड यहाँ पे b1 b2 वैसे का वैसे. Okay, let us substitute. What is c1 c2? Minus 6 minus 2. Minus 6 minus 2. b1 b2 वैसे का वैसा, यानी minus 2 minus 3. Okay, again first minus 6 into minus 3. तो minus 6 into minus 3, इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो. माइनस, वापस एक बड़ा ब्रैकेट. minus 2 into minus 2. minus 2 into minus 2, right? minus 2 into minus 2. Now start solving. minus 6 into minus 3. minus into minus प्लस हो जाएगा. 3 6 18. 18. फिर यहाँ पे minus 2 into minus 2 4 हो जाएगा. तो 4 और बीच में ये माइनस साइन. 18 minus 4. What is 18 minus 4? It is 14. Right? It is 14. Next, let us see dy. Let us see dy. I'm not sure if I'll be able to do this here in this small space. Let me try anyway. dy. This dy. dy के लिए तुम a1 a2 वैसे के वैसे लिख दोगे. b1 b2 के यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा. Always write the formulas. Okay, formulas के अलग से marks होते हैं. Now substitute. a1 a2 क्या है? 3 और 8. c1 c2 क्या है? minus 6 minus 2. Now you calculate. 3 into minus 2. 3 into minus 2. बड़े ब्रैकेट में डाल दो. माइनस, वापस एक बड़ा ब्रैकेट. minus 6 into 8. minus 6 into 8. सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. जैसी नीचे नीचे जाता है बोर्ड, मेरा हैंड राइटिंग और खराब होते जाता है. नॉट दैट यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बट यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा नीट तो होता है. ओके, नाउ 3 into minus 2. 3 into minus 2 is minus 6. Next, minus 6 into 8. What is minus 6 into 8? This is a big number. 8 5 are 40, 8 6 are 48. minus 48 आ जाएगा यहाँ पे. तो minus 48 और यहाँ पे बाहर माइनस साइन. ये अंदर वाला माइनस साइन यहाँ पे ले लिया ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाला माइनस साइन यहाँ पे आ गया. टू बी वेरी केयरफुल अबाउट साइंस ओवर हियर. ओके,
तो 3 इंटू -2 -6, -6 इंटू 8 -48, और ये बीच वाला माइनस साइन यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो -6 + 48, -6 + 48 कितना हो जाएगा? इट विल बी 42. Okay, it is 42. Okay, so we are done with finding d, dx, dy. अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट करना है, राइट? So I'll have to erase this left hand side. Okay. So you write कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो? यू से यूजिंग क्रेमर्स रूल. ओके, एक्चुअली इसको भी निकाल देता हूँ. यूजिंग क्रेमर्स रूल. क्या है क्रेमर का रूल? x इज इक्वल टू dx अपॉन d. व्हाट इज dx? dx इज 14. What is d? d is 7. 14 by 7 is 2. y. What is y? y बोल के मैं x लिख रहा हूँ. dy upon d. What is dy? 42. What is d? 7. 42 divided by 7. 7 का टेबल आता है क्या? 7 5 35. 35 plus 7 will be 42. So ये 6 हो जाएगा. 7 6. तो बस मिल गया हमें इक्वेशन, सॉरी मिल गया हमें सोल्यूशन. x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 6. दैट्स माय सोल्यूशन. दैट्स माय आंसर. यू विल हैव टू राइट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equation. Clear? And you put this in pencil box. And now we are done with the sum. So what do you think? Do you think graphical method is easy, or do you think Cramer's rule is easy? I don't like to draw anything. I don't like to use my pencil. I just want to do everything with my pen. I want to calculate things. So I generally find Cramer's rule easier to solve simultaneous equations. What do you think? Do you think graphical method is easy, or do you think Cramer's rule is easier? You can let me know in the comments of this video. Okay, so we are done with the fourth sum of question number 2. The fifth sum I want you to try by yourself. क्या करना है तुम्हें? काफी सिंपल है, राइट? पहले तुम्हें लिखना है कि पहले तुम्हें चेक करना है वो ax plus by is equal to c is, यहाँ पे प्लस c लिखा है मैंने, यहाँ पे गलत लिखा है. ओके, मेक दिस चेंज. यहाँ पे इक्वल टू सी आएगा, नॉट प्लस सी. मेक दैट चेंज. ओके, मेक दैट चेंज ओवर हियर. यहाँ पे तुम्हें पहले क्या चेक करना है? इफ दे आर इन ax plus by इक्वल टू c फॉर्म. ओके, पहला x वाला टर्म फिर y वाला टर्म इज इक्वल टू साइन के बाद वो अकेला नंबर वैसे फॉर्म में होना चाहिए. अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में लेके आओ पहले, और फिर बाद में बोलो कि वो ax plus by is equal to c फॉर्म में है. देन यू कंपेयर इट विद a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. उससे कंपेयर करके तुम्हें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज मिल जाएंगे. d निकालो, dx निकालो, dy निकालो. इट्स प्रीटी सिंपल. फॉर्मूला याद कैसे करना है ये भी मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया है. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. द सिंपल कैलकुलेशंस. बस ध्यान ये रखना है कि तुम ब्रैकेट्स ठीक से डाल रहे हो. ओके, मेक श्योर पुटिंग ब्रैकेट्स वेरी correctly, and you should be able to find the values of d, dx, dy very simply. And then using Cramer's rule, बस एक दो step और and you get the final answer. Okay, so try to solve the fifth sum. But fifth sum में थोड़ा सा अलग है. Okay, fifth sum में क्या अलग है? x और y के टर्म्स में नहीं है तुम्हारा इक्वेशन, m और n के टर्म्स में. तो यहाँ पे जहां कहीं पे भी मैंने x लिखा है उसके यहाँ पे m लिख दो, या जहां कहीं पे भी मैंने n लिखा है, सॉरी जहां कहीं पे मैंने y लिखा है वहां पे n लिख दो. I'm going to repeat that sentence one more time. तुम्हारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है. क्यों? जो इक्वेशन है वो x और y के टर्म्स में नहीं है. वेरिएबल्स x और y यूज नहीं किए, वेरिएबल्स m और n यूज किया. सो अगर वेरिएबल m और n है, यहाँ जहां कहीं पे भी मैंने x लिखा है वहां पे तुम्हें m लिखना है. जहां कहीं पे भी मैंने y लिखा है
वहां पे तुम्हें n लिखना है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, फर्क नहीं पड़ता कि वो XY है या फिर MN है या WX है, फर्क नहीं पड़ता. अगर दो if you have equations in two variables you can use Cramer's rule. बस x के यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल का नाम डाल दो, y के यहाँ पे सेकंड वेरिएबल का नाम डाल दो. That's the only difference. Okay, so try to solve the fifth sum by yourself. If you all can solve the sum by yourself, you're done with this equation. बाकी के sum से खुद से solve कर दो and you'll be done with the learning session and this practice set. If you're unable to solve it correctly or if you're getting stuck somewhere, you can continue watching the video after trying to solve the question by yourself, and then you'll understand where you're making mistake. Okay, so try to solve the fifth sum by yourself. I hope you're done trying to solve the fifth sum by yourself in your notebook. Only when you try and make mistake and then continue watching this video, it is going to make sense and it is going to lead to learning. If you do not try it by yourself first and directly start watching the video how I am solving the fifth sum on the board, it is not going to make sense. You will understand everything, but when you try to go and solve the sum by yourself, you won't be able to solve it. So make sure you're trying first, making mistake, and then watching the video. Okay, only then you'll be able to solve sums in your board exam, and that's our goal, not understanding the sum. मार्क्स अंडरस्टैंडिंग के नहीं मिलते, सम सॉल्व करने के मिलते, तो वो सीखना है हमें. ओके, सो लेट अस बिगिन. लेट मी फर्स्ट राइट द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज गिवन. 4m plus 6n is equal to 54. तो पहले क्या चेक करना होता है, वो ax plus bx is equal to c फॉर्म में है कि नहीं, राइट? We check whether it is in ax plus by इज इक्वल टू सी फॉर्म. बट यहाँ पे x और y तो है नहीं, यहाँ पे m और n है. तो जहां पे भी x हम यूज करते हैं वहां पे m डाल दो, जहां पे भी y यूज करते हैं वहां पे n डाल दो. सो हम क्या चेक करेंगे, am प्लस bn इज इक्वल टू सी फॉर्म में है कि नहीं. ओके, तो पहले m के साथ m वाला टर्म आना चाहिए, पहले m वाला टर्म आ गया, फिर n वाला टर्म आना चाहिए, n वाला टर्म आ गया, एंड देयर शुड बी एन इक्वल टू साइन, वो है. फिर बाद में एक नंबर अकेला होना चाहिए, 54 अकेला है. सो इट इज इन द am plus an plus bn is equal to c form. Okay, now check is इनके नंबर्स को हम और छोटे कर सकते हैं क्या. कैन यू डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, 4 डिवाइड्स बाय 2, 6 डिवाइड्स बाय 2, 54 आल्सो डिवाइड्स बाय 2. तो 2 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं. लेट अस चेक 3 से सब नंबर्स डिवाइड होते हैं क्या. 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा बट 4 डिवाइड नहीं होगा, राइट? जितने बड़े नंबर से तुम डिवाइड करोगे थ्रू आउट, उतना छोटा तुम्हारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो जाएगा. एंड जितने छोटे a1 a2 b1 b2 c1 c2 होंगे उतना इजी तुम्हारा कैलकुलेशंस होगा. ओके, सो मेक श्योर यू आर चेकिंग कि किसी नंबर से तुम थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हो या नहीं. सो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हो. सो लेट अस reduce the coefficients. Okay, so let me write the equation again. 4m plus 6n is equal to 54 and we can divide through out by 2. So यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 2, यहाँ पे डिवाइड बाय 2. रीजन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2. ओके, अभी 2 से क्या क्या कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 2 1 2, 3 2 1 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 14, तो 27 आ गया. सो व्हाट्स योर इक्वेशन, 2m plus 3n is equal to 27. Okay, इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. एंड इट इज इन am plus bn is equal to c फॉर्म. तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे. सिमिलरली राइट द सेकेंड इक्वेशन, 3m plus 2n is equal to 28. Is this in am plus bn is equal to c फॉर्म? यस. पहला m वाला टर्म, फिर n वाला टर्म, फिर इक्वल टू साइन, फिर कांस्टेंट टर्म. ओके, सो ये भी इस फॉर्म में है. कैन यू रिड्यूस दिस इक्वेशन? इसके नंबर्स और छोटे कर सकते हो क्या? ऐसा कोई नंबर है क्या जिससे सारे के सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे? नो. 2 से डिवाइड करोगे ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा. 3 से डिवाइड करोगे 3 डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो पाएंगे, राइट? सो वी कैन नॉट रिड्यूस दिस फर्दर, सो विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2. तो अभी ये दोनों am plus bn is equal to c फॉर्म में, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 and 2 are in am in am plus bn is equal to c form. Okay, next
we'll have to compare these with someone. Okay, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के values find out करने हैं, right? So you will say comparing 1 and 2 with a1 x होता है, राइट? a1 x के यहाँ पे a1 m प्लस b1 y होता है, b1 y के यहाँ पे b1 n इज इक्वल टू c1 एंड a2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2. ओके, जहां पे भी x होता है वहां पे हमने m लगा दिया, जहां पे भी y होता है वहां पे हमने n लगा दिया, वही डिफरेंस है. सो यहाँ पे x होता था वहां पे m लिख दिया, यहाँ पे y होता है वहां पे n लिख दिया. तो क्या आएगा हमें a1 a2 b1 b2 में फाइंड आउट करना है. a1 a2 b1 b2 and c1 c2. So I'll write this here so that comparison easy हो जाएगा. Okay, a1m plus b1n is equal to c1, a2m plus b2n is equal to c2. Okay, so what is our a1? a1 है 2. What is b1? It is 3. c1 is 27. What is a2? 3. What is b2? 2. c2 28. तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं है. This sum is actually going to be easier than the previous sum. The calculations are actually going to be easier. Okay, so we're done with the first half. Now we'll actually start our calculations. d dx dy find out करेंगे. Okay, so let me write the formula for d. d में यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा. a1 a2 b1 b2 यहाँ पे x और y आता ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा. तो a1 a2 b1 b2 which is a1 a2 2 and 3, b1 b2 3 and 2. That will be equal to 2 into 2 minus 3 into 3. Okay, what is 2 into 2? 2 2s are 4, 4 and 3 3s are 9. So 4 minus 9, that will be equal to minus 5. Okay, dx आ गया, sorry d आ गया. Next dx. dx फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे x है ही नहीं, राइट? तो dx जहां पे भी x है वहां पे हम m लगा रहे हैं. सो dm आएगा. ओके, dm फॉर्मूला सेम रहेगा. b1 b2 वैसे के वैसे, a1 a2 यहाँ पे c1 एंड c2. सब्स्टिट्यूट c1 c2 क्या 27 28 27 28. b1 b2 is 3 and 2 3 and 2. So 27 into 2 minus 28 into 3. Let's do this. 27 into 2, 2 7s are 14, 1 carry forward, 2 1s are 2, sorry 2 2s are 4, 1 carry forward था तो 54 minus 3 8s are 24, 2 in mind, 4 यहाँ पे, 3 2s are 6, 7 8 84. So तुम्हें यहाँ पे plus 54 है, यहाँ पे minus 84 है, right? So you subtract both the numbers and give the bigger number sign. तो तुम्हें 84 minus 54 करना पड़ेगा. So 4 4 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 minus 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा. बड़ा नंबर 84 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे minus 30 आ जाएगा. क्लियर है? dm आ गया. सिमिलरली फाइंड dn. ओके, dy फाइंड आउट करते हैं, y के यहाँ पे n आ जाएगा. dn. राइट द फॉर्मूला. a1 a2 वैसे के वैसे, b1 b2 यहाँ पे c1 c2. सब्स्टिट्यूट a1 a2 क्या है 2 and 3, c1 c2 है 27 28. Start calculating. 2 into 28 minus 27 into 3. Okay, 2 into 28 क्या होगा? 8 2s are
16, 1 carry forward, 2 2s are 4, 5 minus 7 3s are 21, 2 carry 2 in mind, 1 लिख दिया, 3 2s are 6, 7 8, 81. Again plus 56 minus 81, two numbers with opposite signs, you will subtract both the numbers and give the bigger number sign. 81 minus 54, what is 81 minus 54? I'll actually have to do that. 54 नहीं 56 नहीं 56, yes, 81 minus 56. So 8 की जगह पे 7 और एक कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा. So 11 minus 6, 4 plus 1 5 आ जाएगा यहाँ पे, and 7 minus 5 is 2, so 25 आ जाएगा. So this is 25. और बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 81, उसका साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे minus 25. ओके, सो डी, डीएम और डीएन आ गया. अब हम क्रेमर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. we'll erase this part. Okay, so now you say using Kramer's formula. Let me use a different color. Using Kramer's rule, what will I write? मुझे m का फॉर्मूला लिखना है. m के लिए क्या लिखूंगा मैं? dm over d, which is equal to, dm क्या है? minus 30, d क्या है? minus 5. सबसे पहले माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5 6 जा, सो ये आ गया मुझे 6 n. n के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? dn डिवाइडेड बाय d. जहां पे भी x वहां पे हम m लिख देंगे, जहां पे भी y आता है वहां पे हम n लिख देंगे. दैट्स द ओनली डिफरेंस. dn क्या है? minus 25. d क्या है? minus 5. अगेन माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा, सो ये आ गया मुझे 5. सो दैट्स योर आंसर. हाउ टू राइट योर आंसर? m is equal to 6, n is equal to 5 is the solution of the given simultaneous equations. Put that in pencil box. And that's your final answer. Okay. Okay, so we are done with this practice set. We are done with the fifth sum also. I've solved 2 sums for you. The remaining 4, I think 4 sums remaining in question number 2, and there are 2 activity type of questions in question number 1 of practice set 1.3. Okay, that you will solve it by yourself. When you're submitting the notes, make sure you're submitting all that together. पूरा practice set 1.3 सबमिट होना चाहिए इस लर्निंग सेशन के नोट्स में. ओके, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज ओनली गोइंग टू कम थ्रू प्रैक्टिस. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ 2 सम देख लोगे कैसे सॉल्व किया किसी ने, तुम नहीं समझ पाओगे. तुम्हें लगेगा तुम्हें समझ गया, बट जब तुम सॉल्व करने जाओगे तुम्हें आंसर नहीं आएगा. सो मेक श्योर you're practicing. Okay, start with the simple sums given in your practice set. वो activity type sums, so first sum से try करो. First sum is very easy, last sum will be a little challenging. So do that and you should be able to solve the entire practice set. Okay. Let me quickly revise. What is the first step in these types of sums? तुम्हें चेक करना है कि वो ax plus by is equal to c फॉर्म में है कि नहीं. ओके, अगर समझो x के यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है, y के यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल है, तो जहां पे भी से फॉर एग्जांपल m और n में है तुम्हारा इक्वेशन, देन x के यहाँ पे तुम m डालोगे, y के यहाँ पे तुम n डाल दोगे और चेक करोगे सेम फॉर्म में है कि नहीं. ओके, पहला x वाला टर्म, नेक्स्ट y वाला टर्म, फिर इक्वल टू साइन, फिर कांस्टेंट टर्म, उस फॉर्म में है कि नहीं. अगर उस फॉर्म में नहीं है तुम उस फॉर्म में लेके आओगे और फिर उसको इक्वेशन 1 और 2 बोल दोगे. उससे पहले एक और चीज चेक करनी होगी कि तुम थ्रू आउट किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो क्या. उससे क्या होगा, तुम्हारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे. जैसे ही नंबर्स छोटे हो गए तुम्हारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. यहाँ पे भी सब छोटे छोटे नंबर्स आएंगे, राइट. सो यू हैव टू डू दैट. अगर नहीं किया तुमने, ओके, यू डिड नॉट डिवाइड थ्रू आउट बाय सर्टेन नंबर, दैट्स ऑल्सो ओके. आंसर गलत नहीं होगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, तो यू विल गेट द सेम फाइनल आंसर. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. बट इफ यू वांट योर कैलकुलेशंस टू बी इजी, यू हैव टू सी कि यहाँ पे कोई नंबर से थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं. हर नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा. यू डू दैट, देन यू कंपेयर विथ ax a1x plus b1y is equal to c1 and
a2x plus b2y plus is equal to c2, उससे कंपेयर कर लो एंड यू विल गेट a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये मिल जाएंगे। तो जो सब्स्टिट्यूट तुम्हें डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये आता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो d dx dy फाइंड आउट कर दो और फिर क्रेमर्स रूल यूज करके फाइनल आंसर निकाल दो। There's one question I want to pose to you all. Okay, there's one question I want to put across for you all. What happens if d is 0? What happens if d is 0? d 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा -30/0, यहाँ पे मिलेगा -25/0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, d अगर 0 हो गया तो क्या करोगे तुम? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ द आंसर बाय योरसेल्फ एंड पुट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि अगर d 0 हो गया, ये जो डिनोमिनेटर में हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका वैल्यू अगर 0 आ गया, यहाँ पे हमें 0 मिल गया, -5 के जगह पे यहाँ पे 0 मिल गया, तो क्या होने वाला है, तुम क्या बता सकते हो उन इक्वेशंस के बारे में और तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो? दैट यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ व्हेन यू थिंक अबाउट इट। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड put your thoughts in the comment section of this video. Okay, that's one question I wanted to ask you all about. So that is it for this learning session. I hope you have understood how to use Cramer's rule. It's all about practice. It's all about putting all the signs correctly, putting all the brackets correctly. The more you practice, the easier it will be. Okay, that's it for this learning session. I hope you understood everything. I hope you practice many sums, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and peace.